حضرات محترم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے ہاتھی والوں کا حال نہ دیکھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں کنکر کے پتھر سے مانتی، فجعلہم کعصف مأکول، تو جب کنکر ان کے اوپر برسائے گئے، اللہ کا وہ لشکر جب ان پر کنکر برساتا ہے تو پھر ان کا حال یہ ہوا کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح انہیں کر ڈالا انہوں نے۔ حضرات محترم، آج میں رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دادا پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے دادا ہیں، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جو مطلب تھے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ جوان ہوئے آپ کی شادی مدینہ المنورہ میں ہوئی، مدینہ شریف میں آپ کی شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی تو اس وقت آپ کے سسرال والوں نے ایک شرط رکھی کہ جب ہمارے یہاں بیٹی کے بچہ پیدا ہونے کا ٹائم ہوگا تو وہ ہمارے یہاں ہی رہیں گی اور ہمارے ہی گھر میں بچے کی پیدائش ہوگی، یہ شرط آپ نے منظور کی۔ اور جب آپ کے یہاں ڈیلیوری کا وقت آیا، آپ کی بیوی اس وقت مدینہ شریف میں تھی، اور وہیں پر حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، ان کی پیدائش مدینہ المنورہ میں ہوتی ہے۔ حضرت محترم حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہاں چھوڑ کر ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، اور راستے ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب جو حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، یہ مدینہ شریف میں ہی رہے، آپ کی والدہ بھی مدینہ شریف میں رہی۔ جب 7-8 سال کی عمر شریف ہوئی تو پھر آپ کے چچا مطلب حضور حضرت عبد المطلب کو مدینہ المنورہ سے مکہ شریف لے آئے، اور آپ کے والد گرامی کا جو ترکہ تھا، جو پراپرٹی تھی، آپ کو سونپ دی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک 120 سال کی عمر شریف میں ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ میرے مصطفیٰ کے چچا ہیں، میرے مصطفیٰ کے دادا جان ہیں۔ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس دادا جان کا عالم یہ تھا، آپ متقی پرہیزگار عبادت گزار، رمضان شریف کا ماہ مبارک کا چاند نظر آتا، آپ کھانا پینا لے کر کے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ آپ چوروں کے ہاتھ کٹوا دیا کرتے، شراب پینے سے آپ دور تھے، جوا کھیلنے سے آپ دور تھے، جاہلیت کے جتنے برے کام تھے حضرت عبد المطلب ان تمام چیزوں سے بہت دور تھے، ایک خدا کی وحدانیت کے قائل تھے، اللہ کی عبادت میں لگے تھے۔ میرے آقا رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب ایک دن سوتے ہیں تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلتی ہے، وہ زنجیر چاروں طرف دنیا کی 6 دشاؤں میں پھیل جاتی ہے، شخص جہاد میں وہ زنجیر پھیل جاتی ہے۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، وہ زنجیر چاروں طرف پھیلی، اور پھیلنے کے بعد پھر وہ زنجیر جو ہے ایک پیڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پیڑ کی شکل اختیار کرتی ہے۔ جب وہ پیڑ بن جاتا ہے تو قریش کے کچھ لوگ اس پیڑ کی شاخ کو پکڑ کر کے لٹک جاتے ہیں، اور قریش کے ہی کچھ لوگ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ پکڑ کر اس کو لٹکے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جب اس شاخ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک نورانی شخص، ایک نورانی چہرے والا کوئی مقدس اور معظم شخص آگے آتا ہے اور ان سب کو مار کر کے بھگا دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حیرت والا خواب دیکھا، آپ بیدار ہوئے، کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ جب تعبیر پوچھی گئی تو کاہن نے سن کر کے بوانگ دوہل یہ کہا، اے عبد المطلب
तुम्हारी नस्ल से एक ऐसा शाहजादा पैदा होगा जो पूरी दुनिया में जिसकी हुकूमत होगी, पूरी दुनिया में जिसका दीन फैलेगा, वो एक दीन लेकर के आएगा और पूरी दुनिया में उसकी दीन की पैरवी की जाएगी। क्या मशरिक क्या मगरिब सब तरफ उसका दीन फैल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कुरैश के कुछ लोग उस दरख्त की शाख को पकड़ के लटके हुए हैं। ये वो लोग हैं जो उन पर ईमान लाएंगे और कुछ लोग उसे काटने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो उस दीन के मानने वालों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये ख्वाब देखा और उसकी ताबीर जाहिर हो चुकी है। अब जब आप बालिग हुए तो फिर आपने ख्वाब देखा, जब आप बेदार हुए तो आपने देखा आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है, आपके बालों में कंघा किया हुआ है, आपके बालों में खुशबूदार तेल लगा हुआ है, आपका चेहरा नूरानी है। जब आप सो करके उठे तो आपने देखा कि आपका जिस्म नूरानी है, आपके जिस्म में नूरानी कपड़ा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उठे तो आपने ये हालत देखी कि यार मेरे सुरमा किसने लगा दिया, ये खुशबू मेरे बदन में किसने लगा दी, मेरे सर में तेल किसने लगा दिया, मैं तो सो रहा था, कंघा किसने कर दिया। वो अपने चचा के साथ फिर काहिन के पास पहुंचते हैं और इसकी ख्वाब की ताबीर पूछते हैं कि ये मामला है, हमारा ये भतीजा जब सो रहा था और जागा तो ये आलम है। काहिन ने जैसे ही सुना तो कहा, ऐ मुत्तलिब, आसमान के खुदा ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है कि तुम अपने भतीजे की शादी कर दो, तुम अब्दुल मुत्तलिब की शादी कर दो, तुम अपने भतीजे की शादी कर दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौरन फातिमा नामी औरत से शादी की जाती है, जिनसे रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा की जब शादी हुई तो दोनों के मुलाकात से रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुल्क अरब में आपकी धाक जमी हुई थी, लोग आपको मुअज़्ज़म मुहतरम मानते थे, लोग आपको बुजुर्ग मानते थे। जब कोई परेशानी का मामला आता तो लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से दुआएं मांगा करते, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को काबे के सामने ले जाकर उनके वसीले से दुआ मांगते। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाया करता। पूरे कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक मुसल्लम बुजुर्ग थे, एक शख्सियत थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नूर मुस्तफा मुंतकिल होकर हजरत फातिमा के जरिए हजरत अब्दुल्लाह की शक्ल में दुनिया उनसे रुखसत हो चुका था, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में आज भी उनके इंतकाल तक नूर मुस्तफा का नूर उनकी पेशानी में उस वक्त तक जगमगा रहा था। हालांकि वो नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्लाह की शक्ल में दुनिया में जलवा फरमा हो चुका था, मगर इसके बावजूद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फैज पाते रहे। हजरत मोहतरम यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब है जिनके जमाने में वाक़या फील रूनुमा होता है, जो दुनिया का एक अजीम वाक़या है, दुनिया की तारीख का एक अजीम वाक़या है, जैसे असहाबे फील का वाक़या कहा जाता है। आपने सुना होगा कि काबा शरीफ को तोड़ने के लिए, काबा को शहीद करने के लिए यमन का बादशाह अबरहा एक बड़ा लश्कर लेकर के आया था। उसका मकसद था मैं काबे को तोड़ दूं। उसकी वजह यह है कि यमन में अबरहा नाम का जो बादशाह था उसने एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनवाया था, बहुत बड़ा चर्च बनवाया, बहुत खूबसूरत बनवाया, अपने एतबार से उसने बहुत सजाया धजाया और बहुत पैसा उसमें खर्च किया। मगर उसकी नियत ये थी कि मैं इतना खूबसूरत चर्च बनाऊंगा, इतना खूबसूरत गिरजा घर बनाऊंगा तो लोग काबे की बजाय यहाँ आया करेंगे, काबे का तवाफ करने के बजाय लोग यहाँ आया करेंगे, काबे का हज करने के बजाय लोग यहाँ आया करेंगे। इस नियत से उसने चर्च को बहुत कीमती एतबार से बनाया। लेकिन जब ये खबर मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंची तो एक शख्स को बड़ी तकलीफ हुई। वो यमन गया और उस गिरजाघर के अंदर जाकर उसके अंदर उसने पेशाब कर दिया, उसके अंदर उसने पैखाना करके पूरे गिरजाघर को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा गिरजाघर को बिल्कुल गंदा कर दिया। और जब ये खबर ये सब करके वो मक्का वापस लौट आता है, अभी मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शक्ल में अतहर में जलवा फरमा है। आका के तशरीफ आवरी का टाइम हो ही रहा है, ये वाकया पेश आता है। वो शख्स
पेशाब पखाना करके उसे गंदा करके मक्कतुल मुकर्रमा वापस आ गया। लेकिन ये खबर जब यमन के बादशाह को पहुंचती है, आप खुद बताइए उसके गुस्से का आलम क्या होगा, उसके गैज़ और गज़ब का आलम क्या होगा जब उसे पता चलता है मक्का का एक आदमी आया था और जब उसे मालूम हुआ तुमने काबे के मुकाबले में से बनाया है तो उसने आकर ये हालत की है। बस अब्रहा ने कसम खा लिया अब मैं मक्का जाऊंगा और काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा, काबा को तोड़ फोड़ करके फेंक दूंगा, काबा को नेस्तनाबूद कर दूंगा। इस इरादे को लेकर एक असीम लश्कर लेकर के वो अब्रहा मुल्क यमन से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ आता है, मक्के से बाहर पड़ाव डालता है। उसके लश्करियों ने जो ऊंट वहां पर चल रहे थे, जो बकरियां वहां चल रही थी, उन सबको पकड़ लिया और अपने लश्कर में ले आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरदार मक्का थे। आपको मालूम हुआ, आपने खबर पहुंचाई, जब लोगों ने आकर के बताया कि अब्रहा बादशाह आया है और यहाँ काबा को तोड़ने के लिए आया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हम उससे जंग नहीं करना चाहते, ना जाहिरी एतबार से हमारे पास ये ताकत है, हम उससे कुछ नहीं बोलना चाहते। मगर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये पता चला कि उस आपके जानवर उसका लश्कर के लोग हाँक करके ले गए हैं, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कुछ खास लोगों को लेकर के यमन के बादशाह अब्रहा के पास तशरीफ ले गए। अल्लाहु अकबर। रिवायत में आता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही अब्रहा बादशाह के पास पहुंचते हैं, वो अपने कीमती तख्त में बैठा हुआ था, उसके सामने कीमती कालीन बिछी हुई थी, वो बादशाह जबरदस्त एक तख्त में बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब निहायत सादगी वाले अंदाज में उसके पास पहुंचते हैं, अल्लाहु अकबर, उस बादशाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब देखा, देखता ही रह गया। रब्बे जुल जलाल की तरफ से अब्रहा के दिल में वो रौब डाल दिया गया, वो अपना तख्त छोड़ करके फौरन आगे बढ़ता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से खुद बढ़ करके मुलाकात करता है। सुभान अल्लाह। अभी किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं कराया, किसी ने तारुफ नहीं कराया, ये कौन है अब्रहा जो काबा को तोड़ने आया है, वो किसी की क्या रिस्पेक्ट करेगा, वो किसी की क्या ताज़ीम करेगा, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे मुस्तफा के दादा हैं, सुभान अल्लाह, सरदार मक्का है, सुभान अल्लाह, मुवहिद है, खुदा की वहदानियत के कायल है, उनकी पेशानी मुबारक में मेरे मुस्तफा का नूर जलवा फरमा था। अगरचे वो नूर हजरत आमना की शक्ल में अतहर में है, मगर जलवा आज भी उनके पेशानी में था। अब्रहा उसको देख करके अपना तख्त छोड़ करके उनके इस्तेमाल के लिए आगे बढ़ता है। अल्लाहु अकबर। और आगे बढ़ करके खुद आपसे मुसाफा करता है। मुसाफा करने के बाद जब लोगों ने बताया, सामने वालों ने, ये सरदार मक्का है, ये अब्दुल मुत्तलिब है, अब्रहा के बारे में मिलता है, उस समय वो खुद कालीन में नीचे बैठ जाता है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने साथ में बैठ जाता है और फिर पूछता है आप कैसे तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैंने सुना है तुम्हारा लश्कर हमारे ऊंट और हमारे जानवरों को पकड़ लाए हैं, बस हम उन्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। जुमला तो देखो कितना सादगी वाला, वो बादशाह क्या इरादे से आया, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं अपने जानवर को छुड़ाने आया हूँ, मेरे जानवर तुम्हारे लश्कर के लोग लेकर के आए हैं, उन्हें छोड़ दो। इतना सुनना था कि अब्रहा हैरत में डूब गया। उसने कहा सरदार मक्का, अभी तक हम आपको अक्लमंद समझते थे, अभी तक हम आपको बहुत फहम फरासत वाला समझते थे, मगर मुझे हैरत है कि मैं आपके घर, आपका खाने काबा तोड़ने के लिए आया हूँ। मक्के में जो तुम्हारे खुदा का घर काबा है, हम उसे तोड़ने के लिए आए हैं, तुम उसके ना तोड़ने की हमसे कोई गुजारिश नहीं कर रहे, आप अपना जानवर लेने आए हो। तुम्हारे नजदीक जो है काबे की कोई कीमत नहीं है, जानवरों का वजन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्रहा, मामला ये है मैं अपने जानवरों का मालिक हूँ, सुभान अल्लाह, मैं अपने ऊंट का मालिक हूँ, मुझे उसकी फिक्र है, इसलिए मैं आया हूँ। काबा का मैं मालिक नहीं हूँ, काबा मेरा घर नहीं है, काबा खुदा का घर है, वो जाने उसका घर जाने। सुभान अल्लाह।
میں جس چیز کا مالک ہوں مجھے اس کی فکر ہے، میں جس چیز کا مالک ہوں مجھے اس کی فکر ہے، مجھے تو آپ میرے جانور لوٹا دو۔ حضرت عبد المطلب کا یہ جواب سن کر کے ابرہہ دم بخود رہ گیا، جانوروں کو لوٹانے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جانور کو لیتے ہیں، اپنے اونٹوں کو لیتے ہیں، مکہ المکرمہ تشریف لائے اور قریش کو اکٹھا کیا۔ مکہ والوں سے کہا اے لوگوں، ابرہہ بڑا لشکر لے کر کے آیا ہے، اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس لیے تم اپنا مال و متاع لے کر کے مکے سے باہر چلے جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جاؤ، غاروں میں جا کر کے پناہ لو۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ خود اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کے سامنے آتے ہیں، سبحان اللہ، خانہ کعبہ کے سامنے آتے ہیں اور باب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کی زنجیر کو، کعبے کی دروازے کی زنجیر کو پکڑ کر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عبد المطلب مخصوص انداز میں اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رو رو کر کے دعا کرتے ہیں، اے مولا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، مولا تیرا دشمن تیرے گھر کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، ظاہری اعتبار سے ہمارے پاس یہ طاقت و قوت نہیں ہے ہم ان سے مقابلہ کریں، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میری بہو آمنہ کے شکم مبارک پہ جو مقدس شخصیت ہے، ہم اس ذات کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اپنے گھر کی حفاظت فرما لے، ان صلیبیوں سے، ان عیسائیوں سے، ان خدا کے دشمنوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک اطمینان و سکون آپ کو ملتا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر خود پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک غار میں جا کر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا، آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے، ایک نور نکلتا ہے جو ہالے کی طرح گھومتا ہوا خانہ کعبہ تک جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب جب اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے لوگوں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں فتح و کامیابی عطا فرما دی ہے، خانہ کعبہ کا کچھ نہیں ہونے والا، دشمن ہی تباہ و برباد ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب یہ فرما کر غار میں جلوہ فرما ہے، اور یہاں جب صبح ہوتی ہے تو ابرہہ بادشاہ جو ہے اپنی لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوتا، اپنے ہاتھی پر سوار ہوتا ہے، جو ہاتھی لے کر کے وہ آیا تھا اس پر جب وہ سوار ہوا اور اس نے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی، روایت میں آتا ہے وہ ہاتھی جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد جب کعبہ شریف مکہ المکرمہ کی حد شروع ہونے والی تھی تو وہ ہاتھی وہی پر بیٹھ جاتا ہے۔ لاکھ طریقے سے یہ بادشاہ ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر ہاتھی اٹھتا نہیں ہے، اس نے اپنا سر زمین میں رکھ دیا، گویا وہ اپنی زبان حال سے اشارہ کر رہا ہے تو کعبے کو توڑنے کا خیال کرتا ہے اور ہم کعبہ والے کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم کعبہ والے کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم کعبہ جس کا گھر ہے ہم اس رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کعبہ کو توڑنے آیا ہے، ہم زمین پر اپنا سر رکھ کر کعبے کا احترام بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے بس اتنا اس نے سر جو ہے زمین پر رکھ دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، پورا کا پورا لشکر تھم چکا ہے۔ بس اسی بیچ میں اللہ کا قہر ابابیل کی شکل میں سمندر کی طرف سے اڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے سمندر کی طرف سے کعبے کی طرف سے آ رہے ہیں اور پورے لشکر پر آ کر کے چھا جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ان ہر پرندے کے چونچ میں اور دونوں پنجے میں تین تین کنکر تھے، ایک منہ چونچ میں وہ دبایا تھا اور ایک ایک دونوں پنجے میں، ہر پرندہ تین تین کنکری لیے ہوا تھا، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کون کس کنکری سے مرے گا، کون کس کنکری سے تباہ ہوگا، اس کنکری میں اس کا اور اس کے باپ کا نام تک لکھا ہوا تھا۔ اللہ کا یہ قہر بن کر کے جب یہ پرندے چھا گئے اور انہوں نے اس کنکری کو پھینکنا شروع کیا، وہ کنکری جس کے نام کی تھی اس دشمن خدا کے سر پر وہ کنکری رکھتی ہے، پورے بدن کو چیرتی پھاڑتی، سواری کو چیرتی پھاڑتی زمین پر چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے قہر نازل فرما دیا، پورا کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو چکا ہے، ان کے سواریاں اور وہ سب کے سب ان کے ریزے ریزے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پورے بکھر چکے ہیں۔ ابرہہ
अबरहा भी तबाह बर्बाद हो चुका। अबरहा का वो हाथी सुभान अल्लाह जो काबे की ताज़ीम में अपने सर को सजदे में रख देता है, वो हाथी शहीद नहीं हुआ सुभान अल्लाह। उस हाथी को कुछ नहीं हुआ। रिवायत में मिलता है उसके अलावा 7-8 हाथी और थे, वो सब के सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, रेजा रेजा हो गए, मगर वो महमूद नाम का जो हाथी था जो काबे की ताज़ीम में जमीन पर सर रख देता है, अल्लाह ने उसे बचा लिया। पूरा का पूरा लश्कर बर्बाद हो चुका है, हाथी और हाथी वाले सब के सब तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने अपने फज़ल से अपने करम से काबा को इज्जत अता फरमाई और दुश्मनों के हमले से काबा को बचाया, मक्के वालों को बचाया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से ये सारा मंजर देख रहे थे। उसके बाद आप अपने हेलो अयाल के साथ मक्के काबतुल्लाह के सामने आए, खाने काबा का तवाफ किया, रब की बारगाह में सर्व सुजूद हुए, खुदा का शुक्र अदा किया। ऐ मौला, तूने हमें इन सलेबियों से निजात अता फरमाई, अपने घर खाने काबा की तूने हिफाजत की है। कुरान मुबारक में अल्लाह ने इसी वाक़या को बयान करते हुए इस सूरह मुबारका को नाज़िल फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ऐ प्यारे हबीब, क्या आपने न देखा हमने हाथी वालों का क्या हश्र किया, हाथी वालों का क्या हाल किया। क्योंकि उस लश्कर में हाथी थे, इसलिए अल्लाह ने फरमाया हमने उन हाथी वालों का क्या हश्र किया। हज़रात मोहतरम सुभान अल्लाह, मगर अंदाज़े बयान देखिए कुरान का, क्या आपने न देखा सुभान अल्लाह। मतलब ये रब कह रहा है, ऐ महबूब आप थे ना, आप उस वक्त थे ना, आप देख रहे थे हम हाथी वालों का क्या अंजाम कर रहे थे, हाथी वालों को क्या तबाह बर्बाद कर रहे थे, कैसे उन पर अपना कहर नाज़िल कर रहे थे। ऐ आमना के लाल, ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप उस सबको देख रहे थे। अल्लाहु अकबर। जब कोई वाक़या के वक्त कोई मौजूद होता है लेकिन ज़हन उस वाक़ये की तरफ नहीं जाता तो सामने वाला याद दिलाता है, यार तुम्हें याद नहीं है वहां पर ऐसा हुआ था ना। रब ने फरमाया प्यारे हबीब आप उस वक्त थे, बज़ाहिर आप अपनी वालिदा की शिकन में थे, मगर हाथी वालों का हश्र आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, आप सब देख रहे थे। अल्लाहु अकबर। इसीलिए उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी खबीर के पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मुस्तफा देख रहे थे। हजरत आदम को सजदा कराया जा रहा था, मुस्तफा देख रहे थे। हजरत आदम को जन्नत में रखा गया, मुस्तफा देख रहे थे। हजरत आदम ने शजरे ममनूआ से खा लिया, मुस्तफा देख रहे थे। हजरत आदम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया, मुस्तफा देख रहे थे। शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मुस्तफा देख रहे थे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को मुस्तफा देख रहे थे। इसलिए आका को कहा जाता है आलिमे मा काना व मा यकून। मुस्तफा जब दुनिया में ज़ाहिरी एतबार से तशरीफ फरमा होते हैं तो आपसे पहले जो हो चुका था आका उसे भी जानते हैं, जो क़यामत तक होने वाला था आका उसे भी जानते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा सब देख रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना देख रहे थे, सबका जमाना। मेरे मुस्तफा हर दौर में थे। इसीलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने जब मुस्तफा का बारे में मुस्तफा की सामने जब ये वाक़यात को बयान फरमाया तो इसी किस्म का अंदाज इख्तियार फरमाया। अलम तरा कैफा, ऐ महबूब क्या आपने न देखा, मतलब आप देख रहे थे। मुस्तफा जान रहमत के वसीले से मांगी हुई दुआ कबूल होती है, अल्लाह काबे की हिफाजत फरमाता है। ठीक उसके 55 दिन के बाद मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब ये वाक़या हो रहा था मेरे आका अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमना की शिक में अथर में जलवा फरमा थे और मेरे आका सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आफरी की जो बरकतें हैं, मेरे आका के जलवा फरमाने के वक्त में जो बरकतें हैं उनकी इब्तिदा हो चुकी है, उनका ज़ुहूर हो चुका है। उनमें से पहला वाक़या ये था कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुस्तफा जान रहमत के सदक़े में काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाई और दुश्मनाने खुदा को नेस्तो नाबूद फरमा दिया। कल से लेकर आज तक और आगे तक काबा की यूं ही अब हिफाजत फरमाता रहेगा। दुश्मन तो बहुत उठे कि काबा को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, मगर हर दौर में अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की है और आगे भी फरमाता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल हम और आप सबको आका से सच्ची अक़ीदत अता फरमाए, नमाजों की पाबंदियों की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का चर्चा चारों तरफ हो गया। इस वाक़ये से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में लोग अपनी हाजतें लेकर आने लगे कि यार ये तो मुस्तजाबुद दावत है, ये तो बुजुर्ग हैं, ये तो मकबूल बारगाह हैं। कोई भी प्रॉब्लम किसी को होता वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आते। आप किसी को दम करते, किसी को फूंक देते, किसी को दुआएं देते, किसी के लिए हाथ उठाकर अपनी बारगाह में दुआ करते, अल्लाह के फजल से उनके काम हो जाया करते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल मुबारक 120 साल में हुआ। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कल हज़रत अब्दुल्लाह की शादी और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शिक में मुबारक में मेरे मुस्तफ़ा का तशरीफ लाना और उनकी बरकतों का ज़ुहूर होना, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद तो फिर शबे मीलाद मुस्तफ़ा होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मीलाद की खैरात हम और आप सबको अता फरमाए और ईमान पर हम सबको खात्मा नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।